Alright, the first question says, my girlfriend is an OnlyFans model. Dear Junaid, I hope you're doing well. I've been following your work for a long time. I just want to let you know that this is a very sensitive email. It is from a completely anonymous account. You can prefer not to answer and only answer on the email. It's completely fine, whichever way is feasible. I'm originally from Karachi and grew up in Gulshan. I moved to the UK a decade ago for studies when I was in my late teens. Alhamdulillah, life has been good since. I got a job at a brokerage firm after finishing my degree, and things are going really, really well. Growing up in Karachi has taught me to take pride in doing things properly. Even here, I make sure to stay true to the way I was raised. I keep my place neat and clean, and I always dress sharp. I also make time for my prayers despite a busy schedule. Once a colleague joked that I iron my shirts better than James Bond, but honestly, this is just how I have been brought up. It is little things that remind me of home and keep me grounded. That's a very good hobby. Good habits, not hobby. A few months ago, I started seeing someone. She's a Pakistani local and a very independent girl. She's not the cookie cutter template of a typical British Pakistani, and she's extremely well read and smart. When we met 3 months ago, she told me that she's a freelance makeup artist. From the start, I could see that her lifestyle was very lavish. She had all these designer things and lived in one of the poshest areas in of London. At first, I thought maybe she was really successful, but over the time things did not add up. The income I estimated from her makeup bookings did not match the kind of spending I was seeing. After about a month, she told me the truth. She's an OnlyFans artist. She explained that she only does non-nude content like cosplay outfits since she has a makeup artist background. When I asked her to be specific about what she has done, she said she has sold hand and feet pictures on private chats and nothing more. She told me her face is never shown and she has never crossed any line. This is crossing a line. बट वही वाली बात है ना कि आप डिसाइड करो लाइन क्या है. शी ऑल्सो सेड दैट शी इज डूइंग दिस टू क्लियर हर द डेट ऑफ हर फैमिली लेफ्ट बिहाइंड and that once she is free from this debt, she wants to quit and start her own small beauty school, which is bollocks. ये मैं कह रहा हूँ, bollocks इन्होंने नहीं कहा. Teaching makeup is her dream, and she says this is just a temporary means to an end. Now I'm just stuck because I don't know what to do. She seems honest and has been very open about her goals, but I'm struggling to wrap my head around this. I've been brought up with different values. It is not that I'm conservative, as I have had girlfriends before and I have exposure to physical relationships, but this situation feels different. It feels like something I might not be able to accept in the long run. At the same time, I do not want to judge her because I know everyone has their own struggles. I want to trust her, but I also wonder if I'm ignoring red flags. I'm really confused and I do not know how to make sense of this. Do I give this a chance and trust her, or do I take this as a sign to step back? I would really value your advice on this. Thank you so much. It truly means a lot. So एक भाई हैं, लंदन में रहते हैं, वेरी वेल स्टैब्लिश्ड हैं, वेल टू डू, और हर चीज़ उन्होंने बताई. ही स्टार्टेड डेटिंग समवन और पता चला कि वो फिर ओनली फैंस मॉडल हैं, बिकॉज उनके जो खर्चे थे वो एड अप नहीं हो रहे थे. ज़ाहिर है आपको अगर कोई बताता है कि दे वर्क इन अ सर्टन इंडस्ट्री, और फिर आप ज़ाहिर है वो लाइफस्टाइल जब मैच नहीं हो रहा था. फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने आपसे 2 लाख 3 लाख रुपए उधार लिए होते हैं और फिर वो ट्यूसडे की दोपहर को शीशा पी रहे होते हैं, एंड यू नेवर सीन देम एट वर्क, बट वो जेट्स में भी हैं, वो दुबई भी जा रहे हैं, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, फिर वापस आके फिर अरिजीत का कॉन्सर्ट. आप कहते हैं काम तो कोई करती नहीं है ख़ास. आई हैव नेवर सीन हर एट ऑफिस, तो फिर कुछ और ही चक्कर है, राइट. इस तरह के बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट्स नज़र आते होंगे वेयर पीपल आर बेयरली एवर एट वर्क, बट लाइक लाइफ स्टाइल, मतलब इफ़ सेलरॉन जिसको YSL कहते हैं, उसका बैग भी है, उसकी हील भी है, सो थिंग्स डोंट ऐड अप. तो फिर ज़ाहिर आपका दिमाग हर जगह जाता है. तो सिमिलरली इन्होंने जब अपनी गर्लफ्रेंड के देखे खर्चे, अखराजात और मेकअप अपॉइंटमेंट्स, तो इट डिडंट ऐड अप, और फिर उन्होंने बताया कि वो सेफ वाला ओनली फैंस करती हैं, विच इज़ बोलॉक्स, कि वो जी सिर्फ हैंड और फीट की पिक्चर्स भेजती हैं. नाउ दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट, और खैर ये आज से नहीं, तो ओनली फैंस अब आया है. एटलीस्ट अराउंड 7 to 8 years ago पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में somebody had told me कि like a lot of girls who are लाइक उनको नौकरी नहीं करनी और ख़र्चे बहुत हैं, ईटिंग आउट भी करना है, दे नीड अ न्यू आईफोन, सो दिस इज़ अ सेफ वे टू, मतलब वो हैंड की पिक भेज रही हूँ, फेस खुद इमेजिन कर लेना वाली नहीं होती वो सीन. तो वो इस तरह की वेबसाइट्स हैं. देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू स्पेंड गुड मनी ऑन दिस. दिस इज़ प्री ओनली फैंस बाय द वे, और वो इस तरह अपना आईफोन वाईफोन का खर्चा निकालती हैं. नाउ आई एम नॉट इनकरेजिंग दिस प्रैक्टिस, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ जस्ट एज डिजिटल स्ट्रिपिंग एज देयर कैन बी. अब उसमें आप बोलें जी नॉन न्यूड है या ये है, एज लॉन्ग एज इट इज़ सेलिंग योर बॉडी,
अगर देखिए, बॉडी इज नॉट जस्ट योर ब्रेस्ट और योर जेनिटेलिया, इट कैन बी एनी थिंग, क्योंकि पीपल आर वियर्ड दैट वे, समबडी कुड टर्न ऑन, बी टर्न ऑन विद योर फीट और विद हैंड, लोग की अलग अलग फेटिशेस होती हैं. तो एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग मटीरियल फॉर समवन टू फेटिशाइज अपॉन, सो दैट्स प्रोस्टिट्यूशन. अब ज़रूरी नहीं है प्रोस्टिट्यूशन, पुराने ज़माने में नॉन डिजिटल दौर में तो एक ही तरह की थी, वेर यू सेल योर बॉडी लिटरली. अब चूँकि चीज़ें डिजिटल हो गई हैं तो फिर कारोबार के तरीके भी डिजिटल हो गए हैं, तो अब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं. अब आप कह रहे हैं शी सीम्स ऑनेस्ट. देखिए, शीज़ ये जो कह रही है ना कि मेरे ऊपर डेट है, तो जिसने डेट उतारना होता है ना, वो पहले डिज़ाइनर बैग और लेविश लाइफ स्टाइलिंग करता है, वो पहले सबसे पहले डेट ही उतारता है. ये नहीं कि हाँ ये अपने आप को तसल्ली देने की, हाँ ये मेरे को, मैं तो ऐसी नहीं हूँ और मैं तो ये डेट उतारने के लिए कर रही हूँ, और मैंने अपने माइंड में उसकी मिनिमम पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड की होती है ना, जो 14 साल में उतरती हैं, खुद ही बना ली है. अब उस पे से जो आ रहा है, हालांकि मैं 3 पेमेंट से अज्यूमिंग लमसम पे करके मुंह पे मार के डेट उतार सकती हूँ एंड आई कैन मूव ऑन विद लाइफ, बट क्लियरली शी डजंट वांट दैट. शी वांट्स कि हाँ वो हुक भी रहे, ताकि देखिए, नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड अ हॉर इवन इनसाइड देयर हेड. ठीक है, तो ये एक सेल्फ जस्टिफिकेशन लेडीज़ लोग कभी कभी बना लेती हैं कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरे हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं. ठीक है, अगर कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने में अगर इतना कमा सकती हैं तो आप उतारें और उसको भी बंद करें अकाउंट और मूव ऑन विद योर लाइफ. बट हाँ, दिस दैट ये वो, खैर. दूसरी चीज़ ये कि भाई जब आपको एक तरह के लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है ना, तो फिर आप नीचे नहीं आते उससे. स्टीव हार्वी यही कहते हैं ना कि अपने आप को फोर्स करो कि आप बिजनेस क्लास में किसी तरह बैठें, क्योंकि एक बार आप वहाँ के लिए कस्टम हो जाओगे ना, देन यू विल वर्क हार्ड टू बी इन दैट एरिया, बिकॉज यू नो ह्यूमंस ऑलवेज वांट टू एफ अप, यू नो वांट एफ डाउन, राइट. तो हम जो है हर सूरत में ऊपर ही जाना चाहते हैं, नीचे कोई नहीं आना चाहता. इट्स नॉट लाइक शी इज़ मेकिंग लेट्स से £5,000 अ मंथ डूइंग जस्ट क्लिकिंग हर हैंड, अच्छा सा मैनिक्योर करा के और ये अच्छी सी लाइट लेके सॉफ्ट लाइट के अंदर तस्वीर खींच ली और सडनली शी इज़ गोना स्टॉप डूइंग इट, और £5,000 आता हुआ किसको बुरा लगता है. सो यू आर सेइंग कि वो ये छोड़, जब डेट हो जाएगा तो ये छोड़ देंगी एंड शी वुड गो टू £1,500 वाली जॉब. आई एम लाइक, मुझे अमाउंट्स का नहीं पता कि कितनी मिनिमम होनी चाहिए, वो एग्जाम्पल थ्रो करो, राइट. सो यू आर सेइंग वो 10,000 वाला काम जो कि बड़े आराम से हाथ और यूं करके और पैर यूं करके आ रहा है, सडनली शी विल गिव अप ऑल ऑफ दैट, go back to a studio apartment, throw away all her designer bags and designer shoes and like lavish lifestyle and be like, हाँ ठीक है, मैं रामेन खा खा के गुजारा कर लिया करूँगी. No, it's not gonna happen. It's a slippery slope. एक बार जब इसमें कोई घुस जाता है then there is no end to it. Now अब आपको मैं सीधा सीधा बता दूँ, इसमें clearly other men are involved. It's just like your girlfriend is seeing other people. How do you feel about it? दूसरे लोग मज़ा तो ले रहे हैं, अब ठीक है, अगर आपने इसी तरह एनवेलप पुश करते रहोगे या अपनी बाउंड्रीज आगे करते रहोगे, चलो एटलीस्ट वो हाथ तो नहीं लगा रहा, चलो वो तो कहीं और बैठा, वो तो मालदीव्स में बैठा है जो भी है, या फिर कोलंबिया में बैठा है, उसको वो तो जानता भी नहीं है इसको पर्सन, उसको तो उसका नाम भी नहीं पता. सो दैट्स जस्ट यू पुशिंग अननेसेसरी बाउंड्रीज. इट इज़ व्हाट इट इज़, इट इज़ प्रोस्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको कह दिया, राइट. दूसरा आपने कहा कि वो कॉस्प्ले करती है ना, कॉस्प्लेइंग इज फेस मेकअप मोस्टली. तो ये कौन सा कॉस्प्ले है जिसमें फेस नहीं हो रहा? अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि क्या आपने उनका अकाउंट देखा है, क्या आपने उनका कंटेंट देखा है. और इस तरह के जो लोग भेजते हैं ना कि भाई तुम मुझे भी ज़रा लिंक भेज दिया करें ताकि मेरी रिसर्च में आसानी हो, कुछ और ना समझें प्लीज़, ताकि आई कैन ऑल्सो मेक सेंस ऑफ इट कि भाई इस अकाउंट में ये मसला है और इन्होंने आपको ये बताया है, बट दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा, फिर उसमें आई हैव हर्ड कि प्राइवेट भी होता है, लाइक यू कैन पे योर वे टू टॉक टू द पर्सन एंड लाइक मे बी वीडियो कॉल दिस दैट. आई एम नॉट श्योर, आई हैव नेवर डन दैट. आई हैव बॉट ओनली फैंस, आई एम नॉट गोना डिनाई इट, रिसर्च पर्पस कह ले या कुछ भी कह ले, लेकिन ये कि वो बस फ्रंट पे जो आ रहा है, ये प्राइवेट हमसे नहीं होता भाई. मैंने क्या करना है, वो मेरा नाम लेके कोई वीडियो बनाए खल्ली वल्ली. एनीवे, मेकअप अपॉइंटमेंट्स, हाँ अच्छा, हाँ ये भी ना कि शी इज़ गोइंग फॉर मेकअप अपॉइंटमेंट्स. सो लाइक यू डोंट नो वो कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं. इज़ शी मीटिंग पीपल फॉर कॉफ़ी, इज़ शी, और मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा भाई, बिकॉज देखो ये जो स्पेंडिंग इकोनॉमी है ना, देखो टिकटॉक लाइव पे भी यही होता है, बीगो पे भी यही होता था. जो क्लाइंट ज़्यादा आपको गिफ्टिंग कर रहा है ना, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि लेट्स मीट अप. फिर आप भी सोचते हो कि अच्छा यार, अगले ने मुझ पर 6-8 लाख खर्चा किया हुआ है, चलो एक कॉफ़ी तो पीनी है तो पी लेते हैं. एंड देन दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इवेंचुअली. फिर वो ज़ाहिर है दे शो यू अ सर्टन लाइफ स्टाइल, वो फिर आपको घेरते हैं. एंड देन लाइक उनकी किंग इसी में ही है कि वो आई नो समवन फेमस, आई एम गोइंग आउट विद समवन फेमस. एंड देन वो कौन सा सीधा पैसा होता है,
दो नंबर पैसा फिर उड़ाने में देर भी नहीं करते, अगला प्राइवेट जेट भी बुला लेते हैं, एंड देन लाइक द रेस्ट इज यू कैन इमेजिन. हाँ, और दूसरी चीज़ की अभी शी इज़ गोइंग टू स्कूल, व्हाट इफ द स्कूल डजंट वर्क, तो क्या फिर वो दोबारा ओनली फैंस पे आ जाएंगी? लाइक देर इज वेरी वेरी स्लिम चांस शी विल completely get rid of this life and live a normal life. तो अगेन दैट्स हर चॉइस, उनको जो करना है करें. आई एम नॉट हेयर टू पास अ जजमेंट हेयर. मगर ये कि जब इतनी एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो फिर चीज़ें और आसान होती हैं. सो आई डोंट थिंक दिस इज़, अगर आपकी ईगो हर्ट नहीं होती देन गो अहेड विद हर, आई मीन दैट्स योर कॉल. मगर ये कहना कि वो डेट उतरते ही ये सब बंद हो जाएगा, हाईली अनलाइकली. एंड विद टाइम इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स, बिकॉज ऑब्वियसली अभी इसमें एज फैक्ट, अब देखिए दिस इज लाइक अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ओनली फैंस, राइट? सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस व्हेन योर बॉडी गेट्स रिंकली, right? And there's always a supply of young blood coming in. So what happens then when you get old, right? चलो in prostitution terms तो ये होता था कि like once a prostitute is getting old तो उसका इतना नेटवर्क होता है कि वो फिर नई लड़कियां करती है, and then she becomes a pimp या नायिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं, right? खलनायिका एक फिल्म थी, उसी के अराउंड थी, I guess. Not खलनायक, खलनायिका. Now खलनायिका was like ओए होए क्या फिल्म आई है वो, उसमें तो बड़ा गर्म टॉपिक है. So it's like a hush hush. It was like a semi-porn for us. हमने से सुना ही था, I've never seen it. Anyway, तो फिर वो यही करती है कि then she hires a bunch of girls and then उसके इतने contacts already होते हैं मार्केट में जो उसके अपने buyer रहे हों किसी ज़माने में, and then she becomes a supplier. But like what happens in OnlyFans? Because यहाँ तो pimping on platform कर रहा है ना, platform is the pimp. Now platform is not a person, right? प्लेटफॉर्म इज़ एल्गोरिदम. वो डिसाइड कर रहा है कि यार इस पे ज़्यादा रीच आ रही है, इसको पुश करो, इसकी रीच डेड है, इसको खारिज करो, राइट? व्हाट हैपेंस देन? आपका फिर फ्यूचर क्या होता है इसके बारे में? नाउ दैट इज़ समथिंग आई वुड रियली वांट टू डेल्व इनटू एंड सी के इसका फ्यूचर क्या है. बट विल ओनली फाइंड आउट विद टाइम. लेट्स से लाइक 15 years डाउन द लाइन, जब ये ओनली फैन मॉडल्स will start to get older and wrinkly and not so appealing, and like the age will take the best of them. तो फिर क्या होता है? What's the future then? That is something to look at. Now, बाकी अगर आप मुझसे पूछें, for me it's a big red flag. She's already serving a lot of men out there. Now, she belongs to the streets, bro. So, yeah. I mean, like, it's sad. I'm sure you like her and I'm sure she's super smart and everything, but like, super smart log find other ways as well to survive and to clear their debts. Again, that's on her. If this is what she likes, go for it. करें आप. Nobody to judge here. But in your case कि like आपका इसमें फिर क्या रहेगा? You will only be disturbed. फिर आपका जहन चलता ही रहेगा, यार अब और क्या हो रहा है? प्राइवेट मीटअप्स तो नहीं हो रहे, प्राइवेट कॉल्स तो नहीं हो रही, एंड देन दिस दैट. ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वेंट टू दुबई एंड लाइक वो डिसअपीयर थी 12 घंटे, वो ऑनलाइन ही नहीं थी. फिर आपका दिमाग 10 जगहों पे जाएगा. यू डोंट वांट टू लिव थ्रू दैट टॉर्चर. आई वुड से कट योर लॉसेस. यू ओनली बीन विद हर फॉर अ फ्यू मंथ्स. सो या फिर हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक एंड सी उनका फ्यूचर प्लान क्या है इसको लेके. बट आई डाउट, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.